Resource person, Ms. Aruna Sinhaji, a senior faculty of the Art of Living. I also extend a heartwarming welcome to our nodal principal, Professor S.P. Saraswat, and our worthy principal, Professor Ravinder Tikku. The POs from different contingents, the faculty from various colleges, and our lovely NSS volunteers. Before we begin the session, may I please request our worthy principals to please step forward and welcome our revered guest. Please, sirs. May this peace lily bring peace to your life, ma'am. Our resource person, as I told you, is a senior faculty of the Art of Living. She's also a lifestyle consultant and meditation facilitator. She has a master's in English literature and is also trained classical vocalist. She's pursuing masters in yogic science. She has worked at the BBC Radio London and in the education sector in Libya. She has been the recipient of many awards for her work on promotion of holistic health through yoga, meditation, and alternative healing practices. She teaches the internationally acclaimed Sudarshan Kriya and meditation that is propounded by Gurudev Sri Ravi Shankar Ji and is being taught in more than 180 countries all over the world. She is dedicated to public service through alternative healing practices. Presently, she is the coordinator of Art of Living Vedic Dharma Sansthan and is working towards the promotion of ancient Vedic tradition, yagya, and mantra chanting. She believes that life can be made more meaningful through the 5 M's: music, moderation, meditation, mediation, and mantras. And all these go hand in hand for the management of mind. Without further ado, and without standing between you and our worthy resource person, I request ma'am to please step forward and enlighten us all. Thank you, ma'am. Thank you so much, Alpana ji, for that very gracious introduction. अपनी ही introduction ऐसे सुन के somehow, you know, it sounds very strange. But thank you so much, everyone present here. You've gathered, and that is why I am here. Thank you so much to the principals, GNC. My talk today would be very interactive. मैं सिर्फ एक कुछ भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, है ना? तो तैयार हैं सब इस बात के लिए? Yes? ये 4 लोग बस. Yes? Can I have a loud yes? Yes, ma'am. Good. Now can I have your yes with a smile also? Yes, ma'am. Very nice. हाँ? Mind matters, है ना? ये टॉपिक है मन के बारे में. माइंड माने मन, है ना? तो क्विकली पहले हम समझ लेते हैं ये मन क्या है. क्या है? कौन बताएंगे? देखो इस पे कितने सारे गाने भी बने हुए हैं. कौन कौन से गाने बता सकते हो? मन, एनी, बोलो. कोई गाना नहीं आता. मन रे तू काहे न धीर धरे, है ना? और कोई? मैम गुरबाणी में है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान. हाँ, अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस. पर चूंकि यहाँ पे थोड़े यंगस्टर्स हैं, मैंने इसलिए बॉलीवुड की बात की. बॉलीवुड सबको अपील करता है. एनी अदर सॉन्ग? हाँ बोलो. मेरा मन मन जोगिया. मन जोगिया. ओके. मनवा लागे रे. मनवा लागे रे, है ना? तो मन जो है बेसिकली मन या माइंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर थॉट्स, feelings and emotions. Yes, you agree?
है ना, जो हम सोचते हैं या जो हमारी भावनाएं उठती हैं वही तो है ना मन, है ना। और ये देखो कि मन ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गाइड करता है। यू अग्री? देखो जब मन खुश होता है तो भले ही तुम कहीं पे भी हो, चलो कोई तुम लोग अभी सब NSS के हो तो कभी कोई कहेंगे चलो चलो हम पहाड़ चल कहीं, लेट्स गो यू नो माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। मन अगर खुश है सो देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, यस यस चलो चलो करते हैं, यस। आपका मन अगर खुश नहीं है और आपके सामने इवन द बेस्ट ऑफ फूड दैट इज देयर, कहते हैं ना 56 प्रकार के व्यंजन वाली थाली भी रख दो, पर आपका मन खुश नहीं है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना। सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारे मन पे। मान लो तुम कहीं अभी जैसे कुछ बच्चे बाहर से आए हैं, I just got to know that from all over the country you are here. Now suppose you are here, you are enjoying, है ना। भगवान न करे बट वन फोन कॉल कम्स फ्रॉम होम और तुम्हारी मदर कहती है आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, I'm not well. Will you be, आपका मन को क्या हो जाएगा? परेशान हो जाओगे, है ना। तो क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ आवर माइंड। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा? मन क्या है? Who can repeat? What is मन? अच्छा यहाँ पे अगर तुम लोग सिर्फ ऐसे अपना सब कान आंख मुंह बंद करके सुनने वाले हो तब तो मैं भी ऐसे ही बैठ जाती हूँ। वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? आकांक्षा। की ये तालियां हो जाएं। ये याद रखना, थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस माइंड है हमारा। अच्छा मन पे आपका बस चलता है? रेयरली। नो चलता है? वेरी नाइस। नहीं चलता है, ओके उसके लिए यस था। आज की डेट में सारी प्रॉब्लम ही इसको लेके। अभी मालूम है सबको, इंस्टाग्राम पे सबके मम्मी पापा बोलते होंगे, सब स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि नहीं नहीं मत देखो यूट्यूब पर, इस पे इतना ज्यादा टाइम दे, तो भी देखते रहते हैं। रील चालू की तो फिर उंगली चल पड़ती है वो, और फिर अगर कोई आपसे पूछे आपने क्या देखा, आपको याद रहता है? यू डोंट रिमेम्बर। knowingly कि it is not good for me yet we are doing things. Why? Again because मन पे कंट्रोल नहीं है, और सोच करके कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है, I should not be doing this, नहीं doing, I should not be और I should be doing this, नहीं चलेगा ये। क्योंकि पहले अभी हम मन का थोड़ा सा प्रिंसिपल समझ लेते हैं वो कैसे काम करता है। तो मन की दो टेंडेंसीज है। एक क्या, वो जैसे पेंडुलम होता है ना उस तरह से वो स्विंग करता है। कहाँ? या तो वो पास्ट में जाता है और या वो फ्यूचर में जाता है। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द माइंड टू ईदर गो टू द पास्ट और टू द फ्यूचर। अच्छा पास्ट में जाता है तो क्या फीलिंग्स उठती है, क्या भाव आता है बोलो? ओके यू फील नॉस्टैल्जिक। डज दैट गिव यू हैप्पीनेस? इट विल गिव यू मोमेंटरी हैप्पीनेस। तुम्हें अपना बचपन याद आता है, कितना अच्छा था बचपन में, कितना एंजॉय करते थे, बट फिर इमीडिएटली यू कंपेयर इट टू द प्रेजेंट एंड देन यू बिकम सैड अगेन। अरे पर अब तो ऐसा नहीं है ना। तो पास्ट में जाओगे तो इतना जान लेना क्या क्या थॉट्स आने वाले हैं। यू विल बिकम सैड, यू विल हैव गिल्ट, यू विल हैव रिग्रेट। अरे तब मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, या अरे मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो गिल्ट, रिग्रेट एंड सैडनेस, यही तीन इमोशंस आने वाले हैं। तो क्या पास्ट में जाना चाहिए? नो। पर अगेन इसमें कंट्रोल है? नो। हम अब सिखाएंगे आपको कंट्रोल कैसे करना है। पहले हम देख लेते हैं माइंड की टेंडेंसीज। तो पास्ट में तो आपका पास्ट चाहे जितना भी अच्छा रहा हो, बहुत आप रॉयल रहा हो, जो भी हो, बट नाउ इट इज गॉन, वो बीत चुका है। सो उस चैप्टर को बंद करने में ही सबकी भलाई है। योर वैल्यूएबल टाइम इज वेस्टेड पुरानी बातें याद करके, है ना। अच्छा फ्यूचर, मन फ्यूचर में भागता है, क्या होगा कैसे होगा प्लानिंग करते हैं। फिर फ्यूचर में जब अगर बहुत ज्यादा मन रहता है तो उससे क्या इमोशंस उठते हैं? एंजाइटी, घबराहट, क्यों पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना, मैंने तो ऐसे प्लान किया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो फ्यूचर विल ओनली गिव यू फियर एंड एंजाइटी। तो क्या करना है? प्लानिंग कर लो, करो प्लानिंग। ऑफ कोर्स इट इज गुड टू प्लान 5 years
ahead, how do you want to see yourself? मैं अपने आप को किस रूप में देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, वो प्लान करो। फिर क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल है नहीं, तो बेस्ट क्या होता है, उसको हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, उसको कहते हैं समर्पण, सरेंडर। दैट मीन्स आप जिसको भी मानते हो, एक हायर एनर्जी में हर एक का विश्वास होता है या अपने ऊपर विश्वास होता है। many people these days they say I'm a non-believer. Okay, अपने में तो विश्वास है ना, तो जहां भी तुम्हारा विश्वास है उस एनर्जी को तो सरेंडर कर दो, रख दो वहां पे, प्लान कर दो। दैट्स इट, आपका रोल खत्म। नाउ व्हाट टू डू? मन के लिए क्या करना है? चल सबको ऐसे चुटकी बजाओ, डू लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट। ये क्षण, ये वाला क्षण, ये वाला क्षण, ये प्रेजेंट मोमेंट है। अब ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट मोमेंट। इमीडिएटली दिस प्रेजेंट इज बिकमिंग माय पास्ट। लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, इसी में सारे सॉल्यूशंस हैं। तुमको जो काम करना है वो तुमको ये क्षण में करना है, इसी क्षण पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही तुम्हारा मन भागे ना पास्ट में या फ्यूचर में, तो क्या करेंगे? मुस्कुरा के चुटकी बजाएंगे ऐसे। और मेरी बात याद रख लेना, दिस इज द मोमेंट। तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाओगे, फिर इमीडिएटली यू विल कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। व्हाई? ऑल सॉल्यूशंस आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट इज वास्ट एंड डीप। ये वर्तमान क्षण जो है ना, इसकी असीमित संभावनाएं हैं। इट इज वास्ट एंड डीप, एवरीथिंग हैपेंस हियर ओनली। तो ये तो हमने समझ लिया थ्योरेटिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल पार्ट करें तो कैसे करें? तो मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो उसको कहते हैं द सोल्यूशन इज राइट अंडर योर नोज। एंड व्हाट इज अंडर योर नोज? व्हाट डू यू फील अंडर योर नोज? हाथ रखो, देखो क्या है। What do you feel? Your breath. So the solution is in your breath. सारा हल जो है वो आपके श्वास में है। इसीलिए पुराने जितने भी आप स्क्रिप्चर्स उठा लीजिए, उसमें बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं ऑन प्राणायाम। Now what is प्राण? प्राण is your at a very gross level, उसको हम कहेंगे वो है हमारी सांस। प्राण is not just सांस, प्राण इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। तो लाइफ फोर्स एनर्जी को जब हम ध्यान उस पे लेके आते हैं, इमीडिएटली हमारा मन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। एंड इट इज सो इजी। क्या करना है? आंखें बंद कर लेनी है और अपने थोड़ी सी देर बैठ करके सांस पे ध्यान दे दो। कैसे देना है? ओह वाओ, दिस इज द ब्रेथ कमिंग इन एंड द ब्रेथ गोइंग आउट, एंड जस्ट बिकम हैप्पी बिकॉज even at this moment as we are talking, not everybody is breathing, है ना? देखो ना हॉस्पिटल में कितने लोग, अभी जो लोग कोमा में है उनकी भी सांस चल रही है, लेकिन of no use। और कुछ तो ऐसे डेटा है, I'm forgetting, this is a very big number that these many people do not wake up every day। एक डेटा है, ऐसा नहीं है कि सभी सोते और उठ ही जाते हैं, है ना? तो इसी बात के लिए पहले तो खुश हो जाओ और इसके लिए ताली बजा दो कि हम यहाँ बैठे हुए, हमारी सांस चल रही है और हम ये सुन रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ये सबको नहीं मिला है, यही खुश होने के लिए काफी है। सो माइंड मैटर्स हमने क्या देखा? अब हमने दो बातें देखी। पहले हमने देख लिया व्हाट इज माइंड, और हमने देखा टेंडेंसीज ऑफ द माइंड। तीसरी बात हमने देखी कि इस मन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन को मन के लेवल पे तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। मान लो तुम बहुत दुखी हो और डिप्रेशन में जा रहे हो, तुमको लगता है अरे मुझे नहीं ऐसे करना है, नहीं होगा, आपका मन उदासी में ही जाएगा। तो मन को आपको कंट्रोल करना है तो आपको अपनी सांस पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे वर्कआउट करते हो ना एब्स बनाने के लिए, तो माइंड को मजबूत करने के लिए आपको अपनी सांस पे काम करना पड़ेगा। जो मैरिड लोग हैं, मैं कहूँगी अपनी सांस पे काम मत करो, अपनी सांस पर काम करो, ठीक है? वेरी वैल्यूबल टाइम इज लॉस्ट ऑन दैट ऑल्सो। तो मन को ऐसे समझो कि मन इज लाइक अ पतंग, योर माइंड इज लाइक अ काइट। अब वो पतंग में अगर डोर है तो उसको हम पकड़ के डायरेक्शन देते हैं, तो जो
सांस है हमारी, दैट इज द डोर, हिंदी वाला डोर है ना, और इंग्लिश वाला डोर टू कंट्रोलिंग द माइंड. सो आई विल quickly teach you a few steps where we can do this. I'll also teach you how to be more energetic. क्योंकि मैंने आ रही थी तो मैं ये पढ़ रही थी कि आपका जो थीम है that is women empowerment and emancipation both, है ना. तो empowerment, now what is empowerment? Power, empowering somebody. तो पावर कैसे मिलती है? सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए. आपको you should have that strength. स्पेशली वुमन के लिए कहा गया ना, नारी तो शक्ति का पुंज है. अरे मैं तो कहती हूँ कहाँ शक्ति का पुंज. आज जिसको देखो विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी लेके बैठे हुए हैं, स्पेशली लेडीज, है ना. तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वी विल क्विकली सी व्हाट इज दैट. तुम्हें क्या लगता है कैसे एनर्जी मिलती है? बताओ. Who can answer? Quick answers. सनलाइट. Okay, sunlight और food. What's your name? जिसने food बोला? प्रतीक्षा. Let us all clap for her. Lunch time होने वाला है ना? Food is one of the most important sources of energy. But please remember, if food gives us energy, food also takes away energy. What happens on a Sunday when you have a very heavy breakfast like a chola bhatura and lassi, या पूरा वाजवान खा लो, फिर क्या करता है मन? चलो सो जाओ, है ना. तो बहुत खाने से आपको एनर्जी मिलती है, पर खाना एनर्जी ले भी लेता है. और आज की डेट में तो हमने देखा है, खासकर इतनी ओबेसिटी हैज बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम कि अगर 20 साल पुरानी फोटोएं देखो आप, 20 साल पुराने जनरेशन के लोग कैसे दिखते थे, सेम एज, और आज कैसे दिखते हैं उसी एज के बच्चे, यू विल बी शॉक्ड. Everybody is like putting on weight. Why is it? Because of wrong food. Not only wrong food, eating food at the wrong time. तो एक तो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ quickly. Especially girls are very interested कि भाई we should be looking fit and fine. पहले अपना हाथ ऐसे करो और ये साइज देख लो क्या है तुम्हारा, ठीक है. अब ये साइज तुम्हारे स्टमक का है. इसको अगर ऐसे गोल जैसा अगर ये बॉल है, that is the size. Now whatever you eat, चावल, दाल, रोटी, सब्जी. I'm a vegetarian, so I of course say all this. Whatever you eat, but the size should be this. Once I was called to give a talk and I was saying, मैं क्यों कोई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल रही थी खाना ऐसे देखो इतना होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में आना चाहिए. So somebody asked me कि इसकी height कितनी रख सकते हैं. So after that I started adding, well it has to be a ball. अगर आप एक बार में इतना खाना खाते हैं तो आपके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सक्षम है, आप कभी भी शुगर, बीपी इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं, जस्ट बाय बिकमिंग केयरफुल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू ईट. नंबर 1. नंबर 2, द टाइम ऑफ फूड दैट यू ईट. देखो हम अब आजकल बहुत सारी बातें होती है अबाउट सर्केडियन रिदम एंड अबाउट द नेचुरल क्लॉक एंड द बॉडी क्लॉक. पुराने लोग भी कहते थे कि सूरज ढल गया तो आपके पेट की जो जठर अग्नि है, दैट मीन्स द डाइजेस्टिव फायर, इट इज लाइक गैस बंद हो गया. अब एक बंद चूल्हे पे गैस पे आप पॉट रखेंगे पकाने को, वो पकेगा नहीं पकेगा, वो सड़ जाएगा. तो जैसे ही सूरज ढल गया आप प्लीज अनाज मत खाइए. ऐसा नहीं कहूंगी कि खाना ही नहीं खाना है, बट डू नॉट ईट सीरियल्स और ग्रेन्स. सो नो चावल, नो रोटी एंड नो दाल आफ्टर सनसेट. जो खाना है बिफोर सनसेट. बाद में भूख लग रही है, यू कैन हैव व्हाटएवर, सूप, मिल्क, वेजिटेबल, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ट्राई टू गिव योरसेल्फ एन ऑप्शन ऑफ अ प्लांट बेस्ड डाइट. आप उसको करके देखो. मैंने भी अपनी फूड हैबिट को चेंज किया. नॉट दैट आई एम अ वेजिटेरियन बाय बर्थ, बट आई टर्न वेजिटेरियन एंड आई सॉ द इमेंस changes that came in my body and in my mind. So do give yourself a try. एक हफ्ता का plant based diet लेके देखो क्या फर्क दिखता है. Then it is your discretion. I'll not go into the ethical and moral part. Simply on how you feel. Ultimately, it is all about how I feel. Like whatever I'm eating, है ना?
Okay, so most important source of energy is your food. The second source of energy is something that we all love to do. And what is that? कैसे एनर्जी मिलती है? एक तो खा के मिलती है और है ना? यहाँ भी बैठ के कितने लोगों को मन कर रहा है, ओ क्यों ये चल रहा है, इससे चलो हम सो जाते हैं. हाँ? नहीं, I'll not let you sleep. But that sleep is very important. अच्छा, स्लीप कैसे हमारी सही होगी? कितने बच्चे हैं आजकल जो रात में भी 2 बजे तक लगे हुए हैं. पूरा आपका समझो कि ये गड़बड़ हो चुका है, और अगर इस एज में ये बॉडी क्लॉक आपकी गड़बड़ हो गई तो फिर तो आप यू आर इन बिग ट्रबल, बिकॉज यू हैव सीन नो आज की डेट में यंगस्टर्स आल्सो गेटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, कैंसर इज ऑन द राइज, जो कि पहले नहीं होता था, सिंपली बिकॉज वी आर नॉट स्लीपिंग एट द राइट टाइम. तो जो शरीर को आराम मिलना चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं. तो समझ लो कि खतरों से खेल रहे हो. जान है तो जहान है, तो सो जाओ जल्दी, एंड जब सूरज उठता है तो आप भी उठ जाइए. ठीक है, बहुत जरूरी है. आप देखो ना आजकल कितने सारे 5 AM क्लब, यंगस्टर्स आर डूइंग दिस, पुटिंग इट ऑन इंस्टाग्राम. इट इज सो इंस्पायरिंग टू सी. आप भी बनाओ अपनी रील ऐसे उठ के, आपको भी देख के दूसरे इंस्पायर्ड हो जाएंगे. ज्वाइन द 5 AM क्लब, दैट्स गुड फॉर यू. So we know what are the sources of energy. First is food and then sleep. Any other source of energy? Okay. Yoga, meditation. This all comes under our breath. योगा में क्या करते हो? सांस पे ही काम करते हैं ना. प्राणायाम में सांस पे काम कर रहे हैं. तो हमारी सांस is one of the most important sources of energy and we do not realize it. हम क्या करते हैं? I am feeling low. We'll go run to the kitchen, grab a cup of coffee, tea, or try to eat something. है ना? उससे बेटर है अगर आपको बहुत थकान लग रही है या आप लो महसूस कर रहे हैं, लो इन एनर्जी, प्लीज सिट एंड जस्ट टेक अ फ्यू ब्रेथ. क्योंकि जो तुम खाना खाओगे वो तुम पहले उसको पचाओगे, फिर वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तब तुमको एनर्जी मिलेगी. उससे फटाफट एनर्जी मिलती है सिर्फ सांस ले लो बैठ के 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, वो सेम इफेक्ट. देन गो एंड ईट इफ यू हैव नॉट ईटन. ठीक है. सो द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज आवर ब्रेथ, एंड वन ऑफ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द क्वालिटी ऑफ योर माइंड. अगर तुम्हारा मन तुम्हारे से बहुत ज्यादा बातें करता है तो तुम बहुत थके हुए महसूस करोगे. क्यों? माइंड इज कॉन्स्टेंटली चैटिंग. मन में चल रहा है बहुत कुछ. इवन एज आई एम टॉकिंग आपके मन में चल रहा होगा बक 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 बक. तो मन ही हमारा इतना हमें थका देता है. तो फिर क्या होता है? अच्छा, एक तो ये हो गया कि माइंड इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. द अदर इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ थॉट दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. अभी क्या होता है, 4 लोग बैठते हैं, किसी ने एक नेगेटिव बात बोली तो बड़ा मजा आता है ना. नेगेटिव किसी की शिकायत करते हैं जैसे, तो फिर उसमें आगे हाँ पता है, मुझे भी पता है, ऐसे हुआ था, वो तो है ही ऐसे ऐसे. तो एक ने कुछ बोला और फिर 4 आदमी आके उसमें और तड़का लगाते हैं, मिर्ची डालते हैं, मसाला डालते हैं. पर करके देखो, तुम खूब नेगेटिव बातें करो, फिर देखो हाउ यू फील. यू विल फील सो डिप्रेस्ड. आपको लगेगा ना कि बहुत उदास हो जाओगे तुम. वेरी इंपॉर्टेंट, द कंपनी दैट यू कीप एंड द टाइप ऑफ टॉक यू इंडल्ज इन इज सो इम्पोर्टेंट. है ना? इसीलिए कहावत है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. ये सारी कहावतें सुनो, क्यों रेलेवेंस है इसकी. यू विल बी वेरी एनर्जेटिक इफ यू आर सराउंडेड बाय एनर्जेटिक पीपल. हाँ, और डल और डिप्रेस और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो समझो तुम भी वैसे ही होने वाले हो. है ना? सो 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने देख ली. क्या था? फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज स्लीप, थर्ड इज योर ब्रेथ, एंड फोर्थ इज योर माइंड एंड द थॉट्स एंड द कंपनी यू कीप. 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. तो ये देखो, तुमको अगर लगता है कहीं पे भी तुम अटक रहे हो, ह्यूमन पोटेंशियल इज इमेंस. है ना? पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं पे भी नहीं अपना रीच आउट कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो अपने जीवन में, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, if you're not being able to be there, then please check on these 4 things, sources of energy. And
Quickly I'll also tell you, we have 7 levels of existence. हम सोचते हैं ना ये जो मैं हूँ, एक्चुअली हम 7 लेवल पर है हमारा. अब देख लेना, मैं बोलते जाऊंगी तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा कौन सा लेवल है. The first level is our body. जो दिखता है हमें, चलो ये उंगलियां हैं, ये मैं हूँ, दिस इज द फर्स्ट लेवल. पर इसको चलाता है, इसका एक सीनियर है जो इसको चला रहा है, इसका बॉस है. एंड हु इज द बॉस? माइंड से भी पहले इट इज द ब्रेथ. आपकी सांस अगर अभी नहीं चल रही है तो आप कितने भी अच्छे हैं, आपको 4 आदमी उठा के ले जाने वाले हैं, है ना. या तो मिट्टी के नीचे जाओगे या जलोगे या जो भी और भी कुछ तरीका होगा. यस, सो breath is, you can feel the breath but you can't see. so हर लेवल जो है वो सटल होते जाता है. तो फर्स्ट इज द बॉडी, सेकंड इज द breath. now who is the boss of the breath? there is a higher faculty than the breath, that is the mind. है ना. जैसे मैंने बोला कि आपका शरीर भी है, सांस भी चल रही है, लेकिन अगर मन आपका, that is the mind, is not functioning properly, then also पूरा पोटेंशियल आप नहीं रीच कर सकते, है ना. और मन से भी ऊपर क्या है? मन को कौन चलाता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, ना. तभी कहते हैं ना इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है. तो हिंदी में अगर इसको देखें तो शरीर, फिर श्वास, फिर मन, फिर बुद्धि. अब बुद्धि से भी ऊपर एक फैकल्टी है, दैट इज योर चित्त और योर मेमोरी. क्या है चित्त? मान लो किसी को बहुत रसगुल्ला पसंद है ना. अब उसके सामने रसगुल्ला आएगा तो वो पहले देखेगा, सांस लेगा, उसको खुशबू आएगी, गरम गरम रसगुल्ला है, तो उसके बाद उसका मन करेगा चलो खा लेते हैं. बुद्धि क्या कहेगी? मत खाओ. चित्त क्या बोलेगा? या तो बोलेगा अरे खाया था, बड़ा मजा आया था, बड़ा स्वादिष्ट है. क्या कहेगा? मत खाओ, इसको खा के तो शुगर बहुत बढ़ गया था. तो दैट इज द मेमोरी, दैट टेल्स अस, दैट्स अ हायर फैकल्टी, है ना. आपको कैसे पता लगता है कि आग को देख के कि उसके पास नहीं जाना है, जल जाएंगे? कैसे पता लगता है? क्योंकि हर बच्चे ने बचपन में आग में उंगली डाली होती है, या गर्म पकड़ा होता है, या मदर कहती है, तो आपके मन में वो है, मेमोरी में वो इनग्रेन्ड है. सो मेमोरी इज अ हायर फैकल्टी. देन व्हाट हैपेंस? उसके ऊपर भी एक हायर फैकल्टी, दैट इज कॉल्ड अहंकार या ईगो, जिसको हम बहुत गलत तरह से उसको हम समझते हैं. हम कहते हैं ईगो नहीं होना चाहिए. अरे कैसे नहीं होगा? वो तुम्हारे अस्तित्व का पार्ट है वो. एंड ईगो इज दैट फैकल्टी दैट टेल्स यू आई एम अ ह्यूमन बीइंग, जो तुमको एक आइडेंटिटी देता है, दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग. भाई आई एम नॉट अ कीड़ा मकोड़ा, आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. दिस इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. ईगो डजंट मीन्स कि भाई घमंड जिसको हम कहते हैं. देखो दो चीजें, एक होता है घमंड, एक होता है गर्व. मैं भारतीय हूँ और बाकी सब बिल्कुल बेकार, ये घमंड हो गया. मैं भारतीय हूँ और इस बात पे मुझे गर्व है, दिस इज द गुड ईगो, और ये होना चाहिए. दैट्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. ओके. एंड द सेवेंथ और द हाईएस्ट लेवल इज वेयर वी आर जस्ट इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. वी आर ब्लिसफुल एंड दैट इज आवर ट्रू नेचर. बट हम वो नेचर को भूल गए हैं. जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो वी वर वेरी नेचुरल. एक 6 महीने का बच्चा देखो हमेशा मुस्कुराते रहता है. यस. बट अभी अगर आप अपनी शक्ल जाके देखें आईने में तो आपको आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी. और इसीलिए मुझे आपको बोलना पड़ा है थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि अगर इतने सारे चेहरे मेरे सामने ऐसे बैठेंगे, नाउ व्हाट गोस इनसाइड मी. सो प्लीज, ये समय आ गया है देखो कि नेचर ने हमें जो नेचुरल दिया था मुस्कुराहट, वो भी अभी किसी को बोलना पड़ता है कि मुस्कुराओ, है ना. मुस्कुराइए. आप जीएमसी में है. गुड. So we have now seen 4 sources of energy. We have seen our 7 levels. अब देखो तुम अपना, देखो तुम कहाँ पे हो. अगर जैसे घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? वो फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मुझे पीठ में दर्द है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ. दे आर एट द बॉडी लेवल. दैट मीन्स
फर्स्ट लेवल, और जाके बोलना नहीं उनको अरे आप तो इतने बुजुर्ग हैं बट आप तो फर्स्ट लेवल पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। देन देयर आर मेनी पीपल, वो इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो बस उनके सामने आप कुछ भी बोलो वो अपना एकदम इंटेलेक्ट ही लगाते रह जाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि, तो भी वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रीचिंग दैट 7th लेवल, है ना। अब आप देख लेना। और थर्ड लेवल पे अक्सर हम लोग थर्ड लेवल पे होते हैं, क्या वी लेबल आवरसेल्फ, ओ आई एम अ वेरी एंग्री पर्सन, या आई डोंट नो व्हाई आई एम सो सैड, या पता नहीं क्यों आई एम सो इमोशनल, बोलती है ना लेडीज, बोलती है ओ आई एम सो इमोशनल। अरे वो थर्ड लेवल पे हो तुम, केवल इमोशंस आर एट द थर्ड लेवल, माइंड की चीज है ना, मन। So that means you are not just that. You have to go higher and be at the state of bliss or happy. We all want that. खुश रहना चाहते हैं कि नहीं सब लोग, है ना। तो खुश कैसे रहेंगे फिर? बस आंख बंद करो, बैठो और अपनी सांस पे ध्यान दो। देखो क्या होता है, तुम्हारे जो भी कचरा है ना, इवन एट द बॉडी लेवल 99% ऑफ द टॉक्सिन्स केवल सांस के द्वारा बाहर चली जाती है, ठीक है। तो शरीर में जो टॉक्सिन है वही हमको खुश नहीं होने देता है। हमने जो भी खाया, गड़बड़ खाया, तो अल्टीमेटली वो हमारा इमोशंस में रिफ्लेक्ट होगा। कहावत है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो इसीलिए मेडिटेशन और प्राणायाम इज द की टू हैप्पीनेस, बिकॉज इट इज फॉर मेंटल स्ट्रेंथ एंड माइंड मैटर्स। माइंड की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ही आपका जीवन जो है वो खुशमय है, नहीं तो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, अगर खुश नहीं हो तो फिर जीवन बेकार। यस, सब कुछ होते हुए भी आज घरों में बहुत अच्छे अच्छे घर है, सब चीज अच्छा है, बहुत सुंदर, लाखों के डाइनिंग टेबल है, लेकिन घर के 4 लोग या 6 लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं। Then what is the use? Why are we doing all of this? Useless thing, ना? कहने के लिए oh I'm there, I'm doing this and I'm doing that and I have this much and my bank balance, ये वो। अरे भाई काहे का, अगर 4 आदमी प्यार से बैठ के आप मुस्कुरा नहीं सकते हो और बात नहीं कर सकते हो, हाँ। So what is human nature? Naturalness पता है क्या? Naturally एक human being के जो humanness जो है वो किससे आती है? By love, compassion, by sharing, by caring। ये एक मनुष्य होने के गुण है, पर वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, अब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेसफुल है तो तुम उससे एक्सपेक्ट करोगे वो तुमसे बहुत प्यार से बात करे या वो तुम्हारी बात सुने, कंपैशन दिखाए? नो। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज अंडर स्ट्रेस। तो ये माइंड पे जो स्ट्रेस का इतना असर आता है, वो आज पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। एंड आई शेयर अ डेटा विच इज सो स्कैरी एंड व्हाई आई took this responsibility to share this wherever I go। मैं किसी भी काम से कहीं भी जाती हूँ, I love to take such sessions and tell people the importance of mental health, because today even as we are talking, every 40 seconds globally one person is committing suicide। 40 seconds, can you imagine? And this figure has been reported by the World Health Organization। This has been reported, that means इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो 40 सेकंड पर एक व्यक्ति अपनी जीवन ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस वर्क ऑन दिस? यू थिंक दैट? यस, ओनली 4 people think? एवरीबॉडी थिंक्स यस? मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। काम करोगे इस पे? है ना। देखो तुम लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो अबाउट गेटिंग बीइंग एम्पावर्ड एंड बीइंग इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेशन किसको कहते हैं? बताओ मुझे, कौन मतलब बताएगा? What does emancipation mean? Yes. Yeah. To remove the barriers, that is freedom. In one word you can say it's like freedom from your own things that inhibit you. जो चीज हमें रोकती है आगे बढ़ने से। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। What's your name? अंशिका के लिए ताली बजाओ भाई। तो देखो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हो, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर एंड यू वांट टू एंजॉय एंड यू आर गेटिंग टुगेदर, मस्ती मोड में हो, बट जिस चीज के लिए आए हो उसको समझो। तो एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन, हाउ टू बिकम मोर पावरफुल इन लाइफ। कैसे होगे? चाहिए ना पावर,
कोई चाहता नहीं मैं तो ऐसे ही कोने में दीनहीन बन के बैठा रहूं. Anybody wants that type of life? No. We all want to be powerful. If you want to be powerful, you will have to work on this. The 4 sources of energy. इस पे काम करो और अपने मन की क्वालिटी पे काम करो. वो कैसे होगा? जब हम ध्यान करते हैं. तो मैं तुमको टिप्स ऑफ ध्यान अभी सिखाऊंगी नहीं, मैं करा दूंगी. Okay. So I'll teach you a breath which is called Ujjayi breath. Jai means victory. तो पहले किस पे विक्ट्री करना है? अपने इस मन पे, जिसका हमने ये सारा अभी देख लिया टेंडेंसीज. What were the 2 tendencies of the mind? क्या सीखा था हमने? पास्ट में जाना. हाँ, पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है ना? और देखो एक और टेंडेंसी ऑफ द माइंड है कि वो हमेशा नेगेटिव को पकड़ता है. हाँ, अब मान लो तुम कोई किसी ने तुम्हारी 10 तारीफें कर दी. ओ वाओ, व्हाट्स योर नेम? मसरूफा. मसरूफा. बिजी मींस या मैम ऑल टाइम. मसरूफ तो मुझे मालूम था. Yes, मींस it's बिजी. मसरूफा, वेरी गुड. सो मसरूफा, अगर मैं आपकी यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि मसरूफा, आपकी शक्ल देख के ही लगता है कि कितनी आप serene आपकी पर्सनालिटी है. You look so good. हाँ, I should continue ना? No, ma'am. Yes, I'll continue. This dress is looking so good on you, and मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी आपकी शख्सियत है. You are a wonderful person. Yes? पर मुझे लगता है ऐसे कि ये जो ब्लैक शॉल आपने लिया है ना, had it been the color of this, नीचे आ गया. you understood. Yes, ma'am. This is what happens in life. हमारी कोई 10 तारीफ कर दे, लेकिन एक थोड़ी सी अगर बुराई कर दे, तो वो लगेगा, अब मसरूफा को लगेगा अरे मैंने लिया होता तो बीच रंग का कुछ लिया होता शॉल. But then that is how the mind works. ये तो मन की टेंडेंसी है ना? तो ये टेंडेंसी याद करना कि मन हमेशा नेगेटिव को पकड़ता है. तो जब आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आए, तो ये याद रखना कि अरे ये तो टेंडेंसी ऑफ द माइंड है. आई विल नॉट फॉल इन दिस ट्रैप. आई नो हाउ टू गेट आउट. हाउ? I will do some Ujjayi breathing, which I am going to teach you now. Now, how is Ujjayi breathing done? Very easy. सांस तो भाई नाक से ही लेते हैं, तो नाक से ही सांस लेंगे, लेकिन हम नाक से सांस को लेंगे और गले में फील करते हुए, जैसे कि ऐसे देखो, मैं माइक के पास लेते हैं, with a little bit of sound, जैसे मान लो अच्छा, और I'll make it more easier. मुंह खोलो और सांस लो मुंह से, तो देखो गले में ठंडा ठंडा लगता है. अब सांस लेते हुए मुंह बंद कर लो, लेकिन कंटिन्यू ब्रीदिंग लाइक. सो यू फील कि गले में यहाँ की मसल काम कर रही है. कैन वी डू दैट? हाँ, करो उसको. अच्छा, मुस्कुराते देखो तो और अच्छा लगेगा. सो ब्रीद इन एंड इसी तरह से ब्रीद आउट. आपको यहाँ पे गले में एफर्ट लगेगा. जस्ट टच योर राइट हैंड ऑन योर नेक, कीप इट हियर, एंड एज यू ब्रीथ फील दैट एंड ब्रीद आउट. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And relax. So this is Ujjayi breath. अच्छा, अब देखो, अभी तुमने जितने लोगों ने भी सांस ली, जो लोग ऑलरेडी अभी भी लगे हुए थे इंस्टाग्राम में, मैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ, पर जिन्होंने 3-4 ही बार सांस ली, आपके दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है? इमीडिएटली इरेज हो जाता है. ये देखा आपने? दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ. तो कल को अगर आप कभी भी डिप्रेशन में जाए, मान लो आपको किसी ने 4 बार, आपके टीचर ने आपको बहुत डांट दिया, या आपके जो मैरिड है आपकी मदर इन लॉ ने बहुत ज्यादा आपको बुरा भला कहा और आपका मन बहुत उदास है,
So instead of retorting and instead of taking some immediate action which as it is will be wrong, क्योंकि जब इमोशंस ऊपर नीचे हो गए तो जो एक्शन लेंगे वो गलत लेंगे, तो क्या करना है, बैठो 4-5 ऐसे सांस ले लो, या जो कॉलेज में है हो सकता है आपके किसी सीनियर ने आपको कुछ बहुत बुरा भला कह दिया, डांट पड़ गई फॉर नो रीजन, होता है ना, दैट इज हाउ लाइफ गोज, क्योंकि वो आपको सुनना लिखा था, उसको इस तरह से सोचो, आपको ये लग रहा है कि सामने वाले ने मुझे कहा फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, बट यू नो व्हाट यू शुड थिंक, यू हैड टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, अगर इससे नहीं मिलता तो कहीं और से मिलता है, तो अच्छा है, हो गया खत्म, निकलो बाहर, और यस नेवर गो इनटू दैट ट्रैप ऑफ अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला, अभी देखो मैं क्या करती हूँ, अभी तो मैं 10 सुना दूँ, then remember you will be in that trap of you know 1 10 10 100 1000 ऐसे चलेगा फिर, then nature also feels very happy, good, keep busy in this only, you will not be able to come out of it. I am here to teach you some smart work, कैसे निकलना है इन चीजों से बाहर, तो work on your breath, meditation करो, प्राणायाम करो, उज्जैन सीख ली सबने, good, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्राणायाम करते हैं, एक्चुअल प्राणायाम, I love doing that. 9 राउंड करो, मिनिमम 9 राउंड करते ही तुमको कितना कुछ तुम्हें अपने आप में चेंज दिखेगा। क्या करना है इसमें? इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस ले लेंगे, फिर हमने राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेंगे और लेफ्ट से बाहर जाने देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट से लेंगे अंदर, लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से बाहर, फिर राइट को बंद करेंगे, राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से। दैट मींस एट अ टाइम ओनली वन नॉस्ट्रिल इज वर्किंग। इस पे दुनिया भर के तमाम रिसर्च हो चुके हैं आज की डेट में। कहीं पे तो अमेरिका में इसको स्क्वायर ब्रीदिंग करके क्या क्या करके वो सिखा रहे हैं। इस पे रिसर्च करके ये देखा गया कि इसको करने वाले लोगों के बॉडी लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो समझो क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक शब्द है DOSE, इसको कहते हैं डोज। D is for dopamine, O is for oxytocin, S is for serotonin and E is for endorphins. These are known as the happy hormones. जब कोई खुश व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो देखा गया कि ये जो 4 चीजें ये बड़े हाई रहते हैं इनके। तो इनको कैसे हाई किया जाए? तो प्राणायाम करने वाले जो रेगुलर प्राणायाम करते हैं उनके ब्लड लेवल्स में ये चीजें बहुत हाई रहती हैं। और एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो आपके पेन को सहने की क्षमता जो होती है वो आप में हाई रहती है। तो छोटी छोटी कुछ हो जाएगा, इतना ज्यादा ना इमोशनली ना फिजिकली बोथ। तो इसको हम प्राणायाम करेंगे। सो यू आई होप आई हैव टॉट यू दिस, लाइक कि आपने मतलब इसका प्रिंसिपल समझ लिया कि पहले दोनों नाक से सांस ली, फिर आपने राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ा और फिर राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से इनहेल, राइट से आउट। मैं गाइड कर दूंगी उसको। एंड देन आफ्टर डूइंग दैट for a short time I will be just guiding you through a brief meditation where I'll be telling you, okay, now you take your attention to this part of the body and slowly and then like we'll end with that. ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएगा चेयर पे। your spine should be erect। प्राणायाम या मेडिटेशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम जितना ध्यान पढ़ाई में कहते हैं ना, ध्यान से दो, ध्यान से काम करो। आई एम टीचिंग यू दैट हाउ टू डू दैट, मेमोरी पावर बढ़ेगी। ओके, अब आंखें बंद और चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट। Yes, everybody should do this. Now you know your breath is moving in and out of your body. Now gently open your eyes and do what I do. चलो, हाथों को ऊपर उठाओ और हाथों को हिलाओ अच्छे से। Move your hands अच्छे से। Wake up and shake up। और हाथों को नीचे ले आए। Now, right hand को अपने सिर पे रखो, top of the head, and just move the skin on the scalp. Move it clockwise direction, anti-clockwise direction. Relax
अब अपने ये दोनों हाथों को अपने साइड में रखो एंड जस्ट प्रेस अपने पूरे सिर को अच्छे से प्रेस इट नाइसली। मुस्कुराते हुए करेंगे और अच्छा लगेगा। कीप दिस हैंड्स ऑन योर ईयर्स, कान के ऊपर रखो और घुमा लो, कानों को घुमाओ ऑपोजिट डायरेक्शन मुस्कुराते हुए। नाउ होल्ड योर आईब्रोज ऊपर नीचे और इसको अच्छे से जस्ट प्रेस इट नाइसली मुस्कुराते हुए। नाउ 2 fingers on the temples and now हल्के से इसको रोटेट करो opposite direction. Now 2 fingers on the eyes. Very gently touch the eyes and rotate it. Eyeballs and release. Now relax. Now these 3 fingers under your cheekbone and just press it nicely. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम टेंशन एक्यूमुलेट करके रखते हैं। हाँ, इट हर्ट्स, दैट मीन्स अगर वो हर्ट हो रहा है इसका मतलब बहुत टेंस है आप। इसको अच्छे से करिए। नाउ ऑन द जॉ लाइन, इसको भी दबा लें अच्छे से। प्रेस योर चिन, प्रेस योर जॉ लाइन एंड रिलैक्स। एंड नाउ ब्रीद इन एंड टेक योर हेड बैक, ब्रीद आउट, head down. And now just rotate from the right side and back. And now your head goes up and down slowly. Try to touch your chin to your chest and back. जिनको हाँ very gently, fast नहीं करेंगे and relax. Now just lift your shoulders up, up, up. ऐसे कोशिश करें कान को छुए and just drop it down. Just drop it. Now again lift your shoulders up and drop it. One more time and drop it. Now sit straight with your eyes closed and a smile. Now with your right hand, with the thumb you put on the right nostril and the ring finger on the left nostril. अभी थोड़ा दोनों नॉस्ट्रिल से पहले सांस भर ले। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट लेफ्ट। नाउ ब्रीद इन लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट एंड ब्रीद आउट राइट। ब्रीद इन राइट, क्लोज राइट, breathe out left. Breathe in left, close left, breathe out right. Breathe in right, close right, breathe out left. Breathe in left and continue for 9 rounds. अपनी गति से करेंगे। सांस लेते रहें। धीरे धीरे सांस को और लंबा और गहरा होने दें। और इतना जेंटल कि अगर आपके नाक के सामने पाउडर भी रख दिया जाए तो वो उड़े नहीं। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। सर को न झुकाएं, कीप योर हेड स्ट्रेट, आंखें बंद एंड कीप ब्रीदिंग। Long deep breaths in and out. Spine erect.
पूरा ध्यान संगीत पर। Relax your hands, keep it on the knees, आंखें बंद, spine erect. हर आने वाली सांस हमें ऊर्जा देती है, हर जाती हुई सांस गहरा विश्राम। Incoming breath energizes us. Outgoing breath gives us relaxation. Become aware of your breath. ये सांस खुद ही अंदर आती है और खुद ही चली जाती है। Become aware of your body. The body is a beautiful gift to you by the divine. Look at it with a lot of respect and honor. ये शरीर ईश्वर की ओर से मिली हुई बहुत सुंदर भेंट है। इसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखें। आंखें बंद। अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। अपनी सांस की गति पर ले जाएं। सांस पे जैसे ही ध्यान देते हैं, सांस और सूक्ष्म होते जाती है। It becomes more and more subtle. Become aware of your mind. मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन पे ध्यान ले जाए। अच्छे विचार, बुरे विचार, डू नॉट जज, जस्ट बिकम अवेयर। Our mind is like the sky and our thoughts are like the clouds. हमारा मन आकाश जैसा है, विचार बादल जैसे हैं। आकाश में चाहे सफेद बादल हो या काले बादल हो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। They will come and go like the clouds. Mind is like the sky. Become aware of your emotions. मन में जो भी भावनाएं उठ रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएं। अच्छी भावना, बुरी भावना। Once again become aware of your
thoughts and emotions. Become aware of your breath. सांस के प्रति सजग हो जाए. Become aware of your body. शरीर के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your surroundings. आपके अगल बगल जो भी है उस पर ध्यान ले जाएं और उस सब आवाजों को भी स्वीकार कर लें. सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति. And very slowly and gradually, taking your own time, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं. You may open your eyes. Welcome back. Good. Now, very quickly I'll tell you करना क्या है रोज. अब आपको घर में कैसे करना है इसको. तो सुबह उठ के किसी भी टाइम पे, पर आपका पेट हल्का होना चाहिए. You cannot meditate just right after eating. पेट हल्का होना चाहिए. But you have to meditate. If you want to be successful in life, जीवन में सक्सेस चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो मेंटल हाइजीन पे तो ध्यान देना पड़ेगा. जैसे डेंटल हाइजीन है ना, दांत साफ करना मम्मी ने सिखाया था बचपन में, अब वो हैबिट बन चुकी है. अब उसके लिए एफर्ट नहीं करना है, बदत पीछे नहीं पड़ी रहती है. या एनी क्वेश्चन? Okay, so just as dental hygiene is important, for mental hygiene we have to meditate. अब वो समय नहीं है कि हम कहेंगे अच्छा कर लेना, अच्छी चीज है, करो देखो. No, I am adding this word. We have to meditate. It is fashionable to meditate. People who are fashionable, who trend these days, are all meditating. Who are successful, they meditate. जितने लोग भी जीवन में सक्सेसफुल हैं, अगर उनसे बात करो जाके, सब मेडिटेट करते हैं. फेलियर का बहुत सिंपल तरीका है. फेल होना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मत ध्यान दो, कहते ना. सक्सेस चाहिए तो क्या करना है? ध्यान से काम करना है. ध्यान से काम करो. फेलियर क्या है? जब ध्यान नहीं दिया तो ही तो फेल हुए, है ना. अच्छा, just before I finish, just let me share this with you that I am also in charge of the
प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्स, मैं जस्ट वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे तिहाड़ जेल अभी है, तो पूरा इंटायर तिहाड़ जेल को हमें दे दिया गया आर्ट ऑफ लिविंग को कि वहाँ पे भी आप मेडिटेशंस कराइए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं देखती हूँ वहाँ पे, आपको पता है जो मैक्सिमम क्राउड है वो 20s में है, यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो मैं जब उनसे बात करती हूँ मेंटल हेल्थ पे, तो मैं कहती हूँ देखो तुम यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम बुद्धू थे, या तो वो कर रहे थे जो नहीं करना था, या वहां पे थे जहां नहीं रहना चाहिए था। तो दोनों चीज अगर देखो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अ क्रिमिनल देयर, ये जरूरी नहीं है सबने क्राइम किया, तो या तो कुछ गलती की थी या जहां गलती हो रही थी वहां थे। दैट मीन्स कहाँ उनका ध्यान नहीं था ना। अगर ध्यान से कोई काम किया होता तो पहली बात जो गलत कर रहे थे वो करते नहीं, और जहां गलत हो रहा था वहां होते नहीं। तो दे अंडरस्टैंड इतनी छोटी सी चीज है कि मन कितना जरूरी है मजबूत रखना। मन अगर मजबूत है तो अगर आपका शरीर कमजोर भी है ना तो भी चल जाएगा, लेकिन शरीर तो बहुत मजबूत बना लिया, खूब डंबल वंबल करके, या सिक्स पैक एब आजकल सबको शौक है वो कर लिया, लेकिन मन अगर कमजोर है ना तो वो सिक्स पैक एब वाला भी सुसाइड कर लेता है। Yeah. So we will work on getting mental health, mental power, and then you get this emancipation and empowerment. So for empowerment and emancipation, do meditation. That is the tagline. Thank you so much. Thank you. It was wonderful. Excuse me, ma'am. Yes. How many times you are supposed to do this inhaling and The inhaling and exhaling that we did, that is one round means inhaling, exhaling, then again inhaling and exhaling. That is one complete round. Square. So 9 times minimum. या घड़ी देख के कर रहे हो तो 5 मिनट आपने ये किया प्राणायाम, एंड देन कम से कम 10 मिनट तो बैठ जाओ बस। जस्ट सिट एंड जस्ट वॉच योर ब्रेथ, ठीक है? दैट इज अ मस्ट। 2 बार करो तो बहुत अच्छा है, तो मन बिल्कुल खुश रहेगा। और उसको कुछ ऐसे बना लो जैसे लाइक ओके बिफोर ईटिंग आई डू, जैसे रात का खाना लगने वाला है, आप उसके 15 मिनट पहले सब कोई घर वाले बैठ जाओ, तो आओ चलो बैठ के ध्यान करते हैं। सो सिट इन अ ग्रुप विद योर फैमिली, देन बॉन्डिंग ऑल्सो हैपेंस, है ना? तो सुबह भी करिए और इसको शाम में भी करिए, तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करिए तो बहुत अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? आई थिंक आफ्टर मेडिटेशन, हाँ बोलिए। I just have one question. I read somewhere children and people who have ADHD and childhood trauma and many kind of traumas, they cannot meditate. I mean, it's nearly impossible for them to meditate. So, and I think they are the people who need meditation the most, I guess. So, do you have any, because people with ADHD, they have very hyperactive mind. Children also, now also we see that too many children, they are getting that hyperactivity disorders. I should not say disorders because they are not getting that kind of physical activity, they are not dissipating that kind of energy which earlier they used to do in like past. So, do you have any kind of advice for that? Yes, of course. Now first we have to understand how it is all happening. First of all, we have even food habits of the mother while she is expecting a baby plays a very important role. The thoughts that she is having as an expectant mother is very important. Now we are not following all that was taught to us by our grandmothers कि मन अच्छा रखो या, है ना? तो वहाँ से शुरू होता है। तो पहले factors are also there? हाँ, that's what I'm coming to. This is how it starts. Then there are external factors like the times that we are in. अब बच्चा अगर छोटा है उसने बहुत सारा वायलेंस देखा है या उसने अनस्टेबल घर का माहौल ही स्टेबल नहीं, there's so many things because of that why it is happening. Then consuming too much of packaged food,
आप इतने बच्चा को सॉस और जैम और बिस्किट ये सब खिला रहे हो, वो केमिकल जा रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका असर आएगा. So first we have to understand that these are the things that we have to plug. These are the external factors. करना है. अब मान लो आ ही गया बच्चे में ये सिम्टम है, तो क्या करना है? तो पहले तो उसको आप योगा कराइए. Like सूर्य नमस्कार is very good because what happens if there is too much mental activity happening in the brain, then you have to keep the body very active. जो शरीर को थकाना जरूरी है. अब मन इतना सुपर एक्टिव है लेकिन शरीर कुछ काम ही नहीं कर रहा है. The child is only eating and sitting. That's not good. So सूर्य नमस्कार is very good for the child. वो करवाइए. And then प्राणायाम. प्राणायाम से क्या होता है? उसका ध्यान उसकी सांस पे. And then meditation comes. Directly you cannot meditate. No. Especially people who are under depression, we cannot make them meditate क्योंकि उनको पहले. So there is a certain protocol to be followed. I was talking what is this need is for अभी जो मैंने बताया, that is for people who are like okay, ठीक है, वो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे. हाँ, कुछ मेंटल सीरियस मेंटल इश्यूज है, प्लीज कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अ क्वालिफाइड डॉक्टर. डू नॉट सिट एंड सेल्फ मेडिकेट, है ना. बट इन जनरल मेडिटेशन तो सभी को करना है. So that these things don't happen because you become very alert, you become very aware. तो ये सारी बातें even an expectant mother would be very aware that well, this is a very responsible position that I'm in for these 9 months. I'm not going to, you know, indulge in these things like smoking, drinking, alcohol, or bad company, or to, you know, something that's violent, because that will affect ultimately the baby. And if अल्टीमेटली मेरा ही जीवन खराब होने वाला है क्योंकि वो बच्चा बड़े होके मुझे ही उसको देखना है ना. तो एक जिम्मेदारी हमारे में आती है जब हम ध्यान करते हैं. एक जिम्मेदार व्यक्तित्व बनता है वो, फिर वो चाहे खुद के लिए हो या समाज के लिए हो या वो देश के लिए हो. तो एक जिम्मेदार व्यक्ति ही इसको आगे लेके चलता है. दैट इज व्हाई मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट. Thank you so much, and I hope I have inspired everyone. What's your age? From 9 year to whatever. So 9 year onwards, everyone. करोगे ध्यान, है ना? Good. Let's have a huge boisterous round of NSS clap for ma'am. Thank you so much. So good. Thank you so much. Thank you, ma'am. Sir, on the way. Okay, till sir comes, can we have a game? चलो मैं ये देखती हूँ. अब हमने ध्यान कर लिया. अब मैं देखती हूँ आप लोग कितने ध्यान से ये गेम करते हैं. सर इज ऑन वे, तब तक हम ये खेल खेलते हैं. तो आपकी एनएसएस स्टाइल में हम ताली बजाते हैं लेकिन ध्यान से. हाँ, तो जब मैं बजाऊंगी तुम बजाना और जब मैं रोक दूंगी तो तुम भी रोक देना. ओके, लेट अस स्टार्ट. इसका मतलब ध्यान नहीं किया और मे बी द व्यू इज ब्लॉक्ड. अब ध्यान से देखो. यू हैव टू क्लैप व्हेन आई क्लैप, यू हैव टू स्टॉप व्हेन आई स्टॉप. So start. Faster. Faster. Now who is this? I think backside people cannot see. Okay, cannot see me. I'll stand and do it then. और अब देखो, अब मेरी ताली रुकी तो आपकी भी रुक जानी चाहिए. ये कैमरा. So let us start. घूमना चाहिए. Okay. Good. Thank you so much. And now you are all ध्यान से ना, ध्यान वाले हो गए आप लोग. आजो बेटा आजो, अब हो गया आजा.
Ma'am, I have a question. Yeah, we'll take some questions. बोलिए. Ma'am, I wanted to ask you that, like, Sure. for example, I am meditating, right? Okay. So, ma'am, many people do it religiously, and other people, like you also mentioned, they focus on their breath. So, ma'am, some days I focus on, because I'm a Sikh, so I focus on the term Vaheguru, right? And some days I focus on my breath. And now I'm confused that because if I'm focusing on some religious thing, then my mind is like on the meanings of those lyrics or the term Vaheguru. Like we are saying that Vaheguru, the Guru is like the God, okay, right? Yeah. So I don't understand, like, because I then try to focus on the meaning, and then if I focus on my breath, I stop breathing. I don't understand what to do. If you had stopped breathing, you wouldn't be here. And it's like, I'm too focused on it, and then I try to control my breath, whereas the breath should be controlling me, right? The focus is not too much on breathing, and ultimately my mind is not focusing on meditating. It's like, it's too much into this is and also the second part is that I need to know that for how long. I have been meditating for a while now. So I just feel like I am not into meditation, but I am into focusing on what to do and what not to do. So I need to get rid of that, and I need to get into meditation for me to feel at peace mentally. And then also, does therapy really helps? Or should we go for therapy, or should we really stick to meditation, journaling, and things like that? Okay, so to answer your last question first, should you go for therapy or should you do self-medication? Well, if you're, how old are you? I'm 20. 20. So you are staying with your parents at the moment. So if your parents feel that, well, you need to see a specialized doctor, you feel. I feel I need therapy. You need therapy. You think you need therapy. So first talk to your parents what they feel about you. Then it should be a decision, a family decision for something like this. For your own thing, if you are getting too confused whether you are breathing or you are meditating, see what happens is, हम ही लोग अपने मन में इतना कुछ चलाते रहते हैं, मन को चलाते रहते हैं. तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करिए. That means the mind is super active and the body is strong. So first you do, that is why if we say in yoga, there are the 8 limbs of yoga, and we start with yam, niyam, and then third is the asana, and then is the pranayam, the fourth part. So you read a little bit. This is too short a time to even discuss on such a vast topic like this. The key takeaways that I can tell you is, you first do some good physical exercise, then sit, then focus on your breath, and then if you want to meditate, you meditate. Why differentiate? Oh, I should not be doing this, I should not be... ध्यान रखो ना, सांस पे भी रखो, थोड़ा जाप कर लो, and then it will automatically take you into a state of meditative space. That is what the mantras do. I'm also researching a lot on the power of mantras. So mantras take you into that space where it breaks the loop of thought. Why do we do japa? That is because जो मन में जो एक विचार तुम्हारे चल रहा है, कोई negative thought या कोई परेशानी वाला thought, उसको वो break करता है. That is why people use a certain, they will use some sound or some mantra or something. You know, उसी को जप बोलते हैं. So focus on the breath first, then do your japa, and then automatically you go into a state of meditation. However, if your doctor or your parents feel that you should be going and consulting some professional help, then you should do that. Okay? Any other question? Are we through with questions? The students who are sitting here, I would suggest you go on the YouTube and just check Art of Living Intuition. That's a beautiful program that is being taught, a meditation where you will understand the power of the mind. You will be amazed that children who are doing it regularly, even if you put a blindfold on their eyes, they are able to read. Now, what is the science behind this? I don't know. What is actually happening in the brain, but then you can check and see. That is so good. Because all possibilities are there. We restrict ourselves by thinking, oh नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, या इसके beyond. But वो सारी चीजें हैं, तो वो देखना. Then we also offer Pragya Yoga and Medha Yoga for the children. So just go and check if there is a course happening wherever you stay. Art of Living courses, Medha Yoga, that's really helping children a lot.
check on the YouTube, check the feedback or the credentials, then you will understand. So it's a 5-day program, 2 hours each. Do that. Medha Yoga and Utkarsh Yoga for children. And then the intuition course. तो इस पे भी आप करो, पढ़ाई के साथ साथ इसको भी एक्सप्लोर करो. And then who are 18 plus, you can learn the Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is a beautiful breathing technique. कोई ऐसा बहुत टफ उठक बैठक नहीं है. It's just a breathing technique that takes you in a state of relaxation. आप जहाँ रहते हैं आप देखो आपके घर के अगल बगल कौन सा सेंटर है, उनसे पता करो कब कोर्स हो रहा है. Then for youngsters we also have a very nice Yes Plus program. Yes means Youth Empowerment and Skills Workshop. तो skillful हो जाते हो जीवन में. Sorry, I'm interviewing. For your information, last year we organized this Yes Plus. All of the higher education. Oh, so nice. How was that? देखो आपके मैम नहीं बोल रहे. Why don't you Few share? of the volunteers from our college attended the program. Yes Plus वाले Art of Living के बच्चे जिन्होंने attend किया था. Are they here? Tavleen, are you here? Yeah, please get up. She has attended. Most of the students are actually passed out. In Last Kashmir, year. there was also हाँ, Kashmir. We have had programs and there is a wonderful feedback because जो भी youth specific issues होते हैं, बहुत सारे आजकल youth के हार्ट ब्रेक्स तो बहुत ज़्यादा होने लगे, इतने नाजुक हो गए हैं आपके दिल, तो हम आपके दिलों को भी रिपेयर कर देते हैं. तो टूटे हुए दिलों को भी आर्ट ऑफ लिविंग रिपेयर करता है कि आपका दिल ना टूटे, और किसी का टूटा हो तो आप भी उसको रिपेयर करो. And then how to of course increase your mental focus, your concentration. Then how to interact with your peer group, not to come under the peer pressure. है ना? फिर drugs, relationship, माता पिता के साथ कैसे, सारे पे सिखाते हैं अच्छे से. Very nice and power packed program. तो कभी भी आपके अगल बगल चेक करो, Yes Plus हो रहा हो तो enroll yourself for that. For sensitizing the students, that was actually funded by higher education. We funded out of our college funds. We took around 12 students from every college, and one program happened in our college and one in Srinagar. I've seen the feedback of Srinagar. Very nice. Thank you so much, ma'am, for doing a commendable job. Actually, ma'am. My pleasure is all mine. Thank you. अगर मुझे ये लगता है कि हर 40 सेकंड पर अगर कोई सुसाइड हो रहा है, और बिकॉज आज इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है, बट देन व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऊपर ऊपर तो सब बहुत अच्छा दिखता है, बट बिहाइंड दिस ग्लॉस नॉट एवरीथिंग इज ग्लॉसी. तो मुझे ये लगता है कि इफ बाय टेकिंग सच सेशंस आई कैन जस्ट मेक चिल्ड्रन गिव इट अ थॉट. अगर मन में बहुत डिप्रेशन आ रहा है और तुम पंखे को देखो, तुम्हें सडनली यू फॉल इन लव विद द फैन एंड थिंक ओ अब मैं इसमें लटकी जाऊं, तो मेरा चेहरा याद रखना कि थोड़ा बैठ के सांस ले लो. टेक डीप ब्रीदिंग बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल. कहते हैं ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज. तो नेवर थिंक योरसेल्फ टू बी हेल्पलेस और यू नो powerless. No, you are very powerful, and to explore that power you have to meditate. Become a meditator. As I told you, it is fashionable to meditate. That's trending. So the teachers also, have you done ever done the Art of Living Happiness course? 2015 में आपने वहाँ करवाया था नीचे कॉलेज में ना ऑडिटोरियम में. हाँ खेलना नाम के जाए. आपने किया? अरे वाह. आप किया? कर लेना For sure, ma'am. Kashmir last Please year, organize Kashmir some people. sessions. You can tell your principal. So I'll come and do. This is once a For month. sure, ma'am. Once in a month. You learn the proper course first. The Sudarshan Kriya, that's a 5-day program or 6-day program, 2 hours each.
You learn that, then you practice on your own, and then we can give a follow-up sessions. Every week. Just forget everything and relax. And then also you can invite, once there is a good substantial number who have done the course, we can invite Shri Ravi Shankar ji himself. It's a blessing for you. So you all are the faculty of this college? 16 contingent from outside. The participating states are Assam, Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Sikkim, and whole of the northeast, Meghalaya, Mizoram, Tamil Nadu, Karnataka. 16, and Punjab is left. Punjab and Uttarakhand. And we have 140 participants from outside JNK. And 60 we have taken from JNK because as a host state, we take 3/4 of, 3/4 we give to other and 1/4 we give. We have 60 participants from Jammu Kashmir, and every 10 students are being accompanied by one program officers. So these are the program officers who have accompanied, and they are actually coordinating on behalf of their countries. So आप यहीं से Thank you for taking out time for being with us, sir. Thank you so much. So just to inform you, we just have had a very wonderful session on mind management, and we do not have enough words to offer gratitude to ma'am. So just as a tiny token, may we request our director colleges and our worthy principals to please offer a tiny gratitude symbol to her, please. No. Ma'am, you will be pleased to know this memento has been prepared by some of the students who have been doing. They're prepared by our students, ma'am. Thank you, sir. We are highly thankful to you for this session. Ideally, I would have loved to be also a part of this mind game, which is very important. Mind management, rather. Badly needed for us also. We are highly thankful for this important session because students from the whole country were participating in this. It was very large, and we are highly thankful for that. And we look forward to your visit again to us, to other colleges also. Sir, ma'am, if you could just please spare a moment for a photograph with the NSS POs. Please. Thank you. The NSS POs, please, your request.